Friends, we studied about some diseases and their infectious agents. We studied name of the infectious agents and not uh, exact name, but in general we studied that some diseases are spread through virus, some diseases spread through bacteria, some spread through protozoan, and likewise some through fungal infections. Now we will discuss the uh, important diseases in human. Important diseases in when we consider important diseases in human, most common one is common cold. Common cold is a viral disease and it occurs by rhinovirus. Name of the virus through which common cold occurs is rhinovirus. Symptoms of common cold are sore throat, गले खराब हो जाता है, cough, headache. You are well aware of about this disease, and common cold is very common actually. The second one is chicken pox. Chicken pox is also a viral disease. Chicken pox spreads to varicella virus. Symptoms are rashes on body, fever, itches, body pain means uneasiness, and blisters. Sometimes these rashes change into blisters. Next viral disease is measles. Measles means khasra. This is also a viral disease. Measles is also a viral disease. Symptoms of the measles are red and watery eye, पिंक रैशेस. इसमें भी बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, लेकिन जो चिकन पॉक्स के रैशेस होते हैं जनरली वो ब्लिस्टर्स फफोलो जैसे होते हैं और स्टार्टिंग में वाइट कलर के होते हैं जिनमें पानी भर जाता है. लेकिन जो खसरा के इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें जो रैशेस आते हैं वो पिंक कलर के रैशेस रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बर्निंग होती है. ये चिकन पॉक्स में भी होता है और मेजल्स में भी होता है, लेकिन दोनों में जो रैशेस का पैटर्न है वो अलग रहता है. ओके स्टूडेंट, now we will discuss some bacterial diseases. Typhoid. Typhoid is a bacterial disease. Bacteria Salmonella typhi. Salmonella typhi named bacteria spreads typhoid. Symptoms of the typhoid are fever, headache, loss of appetite, skin rash, either constipation or diarrhea. Means actually symptoms of constipation or diarrhea is related with our digestive system. Actually bacteria of typhoid infects our intestine, so this type of symptom appears. Next viral disease is tuberculosis. Tuberculosis bacteria, name of the tuberculosis bacteria is Mycobacterium tuberculosum. Mycobacterium tuberculosum. This tuberculosum or tuberculosis लिखा है इसमें, tuberculosum is more correct. सिम्टम्स आर नाइट स्वेट्स, फटीग, वेट लॉस, और जानते ही हैं आपकी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा कफिंग होती है और सूखी खांसी आती है. ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है BCG. बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि BCG का टीका किस बीमारी में लगाते हैं, तो बेटा आंसर होगा BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, जिसे आप TB के नाम से जानते हैं, उस बीमारी में ट्यूबरकुलोसिस में BCG का टीका लगाते हैं. और BCG में BCG वो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन. तो BCG का जो टीका है ये इसकी वैक्सीन है. अगर ये बचपन में ही जो कॉमन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो उसके थ्रू ही जब इसका इंजेक्शन वैक्सीनेशन के टाइम पे दे दिया जाता है, डोज मिल जाती है, तो ये डिज़ीज़ डेडली डिज़ीज़ नहीं बनती है. इन्फेक्शन होता भी है और अगर लॉन्ग टर्म में पर्सन को मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन डेथ
का चांस बहुत कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज इज मलेरिया. Malaria is a protozoan disease. Name of the protozoa that cause malaria is Plasmodium. Actually, there are 4 common species of malarial protozoan. These 4 species are Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malari, and Plasmodium ovale. Plasmodium, all these 4 species spreads fever, malaria, but most fatal one is Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum से जब मलेरिया होता है तो वो बहुत घातक होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी लगभग 72 घंटे के बाद 72 आवर्स के बाद इसमें चिलिंग एंड फीवर आता है। तो मलेरिया बीमारी में जो चिलिंग होती है और फीवर आता है वो क्यों होता है? क्योंकि मलेरिया डिजीज़ में जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड पैरासाइट है। वो जब हमारी ब्लड में एंटर करता है तो ये हमारी ब्लड सेल्स को खाता है। फिर पहले तो ये पूरे किसी भी जगह बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, फिर लास्ट में ये लिवर में जाकर WBC को खाने लगता, RBC, WBC नहीं बेटा, RBC रेड ब्लड सेल्स को खाने लगता है। और रेड ब्लड सेल्स का जो भी कंपोनेंट है उसे पूरी तरीके से खाकर कुछ चीज़ें बचती हैं जो टॉक्सिन्स होती हैं। जैसे जैसे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा RBC सेल्स को प्लाज्मोडियम खा चुका होता है और सेल के अंदर केवल उसका डेब्री बचा होता है, यानी वो टॉक्सिन जो प्लाज्मोडियम ने अपना खा पी के रिलीज़ किया है, बचा खुचा मैटर है। तो जैसे जैसे वो टॉक्सिन बढ़ता जाता है सेल के अंदर, RBC सेल्स के अंदर जैसे जैसे टॉक्सिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे तेज़ी से फीवर और चिलिंग होती है, यानी कपकपी के साथ तेज़ बुखार आता है और ठंड लगती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया बुखार में ठंड लगती है और कपकपी के साथ क्यों होता है ऐसा, तो आप बताएंगे क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है जब वो RBC सेल्स को कंज्यूम करता है, खाता है, उनको इनकी ईटिंग करता है, तो उस समय ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा RBC सेल्स को ये ख़त्म कर देता है और टॉक्सिन उनमें रिलीज़ किया हुआ होता है, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी जो है उसमें ये चिलिंग का सिम्टम आने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक वर्ड और आया यहाँ पे, मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड। हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया है, फिर भी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आज 1 जुलाई कल आने वाली है 1-2 दिन में, तो 1 जुलाई को किसी को मच्छर ने काटा और मच्छर ने किसी को, घर में कोई बच्चा है उसके, मान लीजिए कि ये कोविड-19 का टाइम नहीं होता और 1 जुलाई को घर में रात को किसी को मच्छर ने काट लिया होता और वो मच्छर इन्फेक्टेड भी होता। मच्छर जो मलेरिया फैलाता है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है। अगर वो फीमेल एनोफिलीज जो इन्फेक्टेड मच्छर है वो किसी बच्चे को काट लेता 1 जुलाई की रात को, और फिर वो बच्चा सुबह अपने स्कूल आने को तैयार होता, फिर 2 या 3 को नहीं तो 4 तारीख तक उसको रात को फीवर आने लग जाता। क्यों? क्योंकि जब इन्फेक्टेड मच्छर उस हेल्दी चाइल्ड की बॉडी में इंटर करेगा तो उसकी बॉडी में पहले उसकी RBC सेल्स को कंज्यूम करेगा। शुरुआत में तो लक्षण नहीं दिखाई देंगे, देखिए पैथोजन आ गया लेकिन लक्षण नहीं दिखाई दिए। लक्षण दिखाई देंगे 3 या 4 दिन के बाद, तीसरी या चौथी रात को लक्षण कपकपी के साथ, ठंड लगने के साथ तेज़ बुखार आएगा। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएंगे चेक वक करके, यही टॉक्सिन का, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और इनका भी टेस्ट किया जा सकता है और इससे फिर पता चलेगा कि हाँ इनको मलेरिया हो सकता है। इनकी ब्लड में पैरासाइट भी दिखेगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी दिखेगा। तो यानी कि 1 जुलाई को जब मच्छर ने इन्हें काटा था और जब ये स्कूल आ गए 4 जुलाई या 3 जुलाई की रात को जब इनको कपकपी आएगी, ठंड लगेगी, यानी सिम्टम्स फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, यानी जब खुद इन्हें पता चलेगा कि हाँ इन्हें मच्छर ने जो काटा था तो इन्हें उससे बीमारी हो गई,
तो फर्स्ट बाइट या फर्स्ट एंट्री ऑफ द पैथोजन से फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम के बीच का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इन बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन इन बॉडी टू अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। जब मच्छर बॉडी में आया और जब पहली बार सिम्टम आए, यानी 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई के बीच का जो टाइम था वो इंक्यूबेशन पीरियड था। उस टाइम में अगर ये पता चल जाता किसी तरीके से कि इनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ चुका है तो ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं होती, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं ये बड़े ही चुपके से आते हैं और शुरुआत में हमला बिल्कुल तेज़ी से बोल देते हैं, बॉडी की बहुत सारी सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, बॉडी को मालूम भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे जब बॉडी की कंडीशन ख़राब करने लग जाते हैं तो बॉडी सेल्स को मालूम चल पाता है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ चुका है। वैसे हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये पैथोजेंस होते हैं ये भी बहुत अपने आप को, ये भी पर्याप्त जो है वो पावरफुल होते हैं और इसीलिए ये इन्फेक्शन फैलाने में दोनों के बीच फाइट होगी, हमारी बॉडी के बीच और इन्फेक्शियस एजेंट के बीच में। जो जीतेगा वैसा हो जाएगा। अगर इन्फेक्शियस एजेंट जीतेगा तो बीमारी शरीर को लग जाएगी, अगर हमारी बॉडी जीतेगी तो हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और सिम्टम्स नहीं आएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमें कोई बीमारी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कुछ डिजीज़ के बारे में। अब एक डिज़ीज़ हम देखते हैं, कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर हमेशा क्यों होता है आप जानते होंगे। कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ दैट डेवलप ड्यू टू एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब हमारी बॉडी में कोई सेल, किसी भी जगह की कोई भी सेल अनकंट्रोल तरीके से, अपने मनमानी तरीके से डिवाइड करने लग जाती हैं तो उससे जो बॉडी में सेल का मास बनता है उसे ही ट्यूमर कहते हैं और यही कंडीशन जो है वो कैंसर कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कैंसर से रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि किन्हें कैंसर होने का चांसेस बने रहते हैं। तो जो टोबैको च्युइंग करते हैं उन्हें, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं उन्हें। इसके अलावा आजकल एक कॉमन और डिज़ीज़ हमें देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब ब्लड हार्ट से बाहर पंप किया जाता है, हार्ट बॉडी में पंप किया जाता है, तो उस टाइम पर हार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी में भेजा जाता है। हार्ट जब बॉडी में पंप हो रहा होता है तो जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है वही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर नॉर्मली तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस प्रेशर को बेयर करने के लिए सफिशिएंट होती हैं, लेकिन जब कभी जो नॉर्मल प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर बॉडी को लगाना पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि इनको हाइपरटेंशन हो गया है या इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस, टेंशन या ज़्यादा सॉल्ट इनटेक से, फैट इनटेक से ये हाइपरटेंशन जो है हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको लिशमैनिया की फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है। लिशमैनिया भी एक प्रोटोजोवन है। जैसे कि प्लाज्मोडियम के बारे में हमने देखा कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है जो कि मलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है, उसी तरह लिशमैनिया भी एक प्रोटोजोवन है और ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसका नाम है ब्लैक फीवर डिज़ीज़ या काला ज़ार। काला ज़ार जो वर्ड है वो इंग्लिश ओरिजिन का वर्ड नहीं है। ब्लैक वाटर जो वर्ड है वो इंग्लिश ओरिजिन का है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आसपास गंदा पानी या काला पानी होता था वहाँ के लोगों में ऐसा देखा गया कि उनको ये डिज़ीज़ हो जाती थी, इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया ब्लैक वाटर फीवर डिज़ीज़। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बुक में बना हुआ है वही ये स्लाइड यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो पूछा जाता है इस डिज़ीज़ के बारे में, तो ये डिज़ीज़ किससे फैलती है? एक प्रोटोजोवन से फैलती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है लिशमैनिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कि हम आगे स्टडी करते हैं, आगे की स्टडी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।